Hello and welcome back to the Kubernetes course Beginner to Advanced presented by Skillar. My name is Anugrah Chaturvedi and I will be your instructor throughout the course. So in a previous video, we had discussed about what are the features of the Kubernetes, some of the history of the Kubernetes, and what is the working of the Kubernetes. Why will we need Kubernetes and what was before the Kubernetes. All these stuffs were discussed in that previous video. Now let's jump over some advanced topic called components of Kubernetes. And trust my friends, it is one of the important topic in a Kubernetes. You will not be having any interview without going through this component part. So take this very seriously. Now let's jump over what are the components. So components of a Kubernetes are divided into two parts only. Master node and a simple node. And master node has this another name called control plane. In a documentation, you will always find the control plane. And a simple node or a worker node will be represented by either it is called worker node or a simple node. This is the major components of the Kubernetes. And the collection of both master node and the simple nodes or a worker node is called clusters. So like here you can see the diagram, this master and that simple or worker node together form a cluster. This is what we call cluster. Okay, and your task is simply to build that cluster. Okay, so Kubernetes administrator has to basically build that cluster and maintain that cluster. This is what a simple task is. Now, what is this master node? What is this worker node? How they are, why these arrows are made here, and क्या ये कोई separate hardware होता है, क्या ये master node है क्या चीज, तो अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं. So master node is simply a machine that contains all the components which are used to make global decisions about the clusters. So in a previous slide, we have seen that this is a cluster. This whole rectangle in a red color is cluster. And master node is responsible for making a decisions for this cluster. Okay, so how many nodes will be there? What are the components over the worker node will be there? What are the components over the master node will be there? How the workflow will go on? All these decisions are made by master node. Okay. Now these components store and manage the state of cluster, but they aren't what runs the application container. This is the important point. मास्टर नोड पर कभी भी आपका एप्लीकेशन कंटेनर रन नहीं करता है. ठीक है, आप ऑल्दो आप उसे रन कर सकते हो, ऐसा नहीं है, गलत नहीं होगा, बट वो रन नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेड होता है. क्यों? क्योंकि आप माइक्रो सर्विसेज पढ़ रहे हो, मोनोलिथिक सर्विसेज नहीं पढ़ रहे हो. माइक्रो सर्विसेज का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो आपका कोर मटेरियल होता है उसको आप पार्ट्स में ब्रेक कर देते हो और अदर अदर छोटी छोटी सर्विसेज बनाते हो और हर आर्किटेक्चर के लिए अदर सर्विस प्रोवाइड करते हो. ये आपका कोर होता है माइक्रो सर्विसेज का. तो अगर आपने मास्टर नोड पर ही वो कंटेनर रन कर दिया जिस पे एप्लीकेशन चल रहा है, तो माइक्रो सर्विस कहाँ हुई? वो तो मोनोलिथिक सर्विस हुई, है ना. तो मोनोलिथिक में देखते हो आपकी स्ट्रांगली कपल्ड एलिमेंट्स होते हैं, बट माइक्रो सर्विसेज में वो ब्रेक फॉर्म में होते हैं. इसलिए हम लोग माइक्रो मास्टर कंटेनर पर कंटेनर रन नहीं करते जिस पे एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर्ड होता है. ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार इंटरव्यू में. ओके, तो मैंने बोला कि मास्टर नोड जो वो होता है जिसपे सेट ऑफ सॉफ्टवेयर मेक होते हैं और वो सॉफ्टवेयर ग्लोबल डिसीजन बनाते हैं किसका? क्लस्टर का. तो वो कौन से सॉफ्टवेयर है? सो द फर्स्ट कंपोनेंट इनसाइड द मास्टर नोड is called API server. Okay, API server, I think if you are learning Kubernetes, you must aware of the fact what is API. And API server is nothing but a communication pathway in terms of if we talk about the Kubernetes. Okay, so if the let's say if there is a one person named X and he wants to talk with Y, or instead of person consider it as a component. If there is a component named X and he wants to talk with Y
and he wants to make a connection with Y, then he has to go through API server. This API server. Okay, so the connection will go through this. And every component in the cluster communicate through API server. Okay, so this is the one of the important part, because you cannot leave the API server in that place where it is less secure, because all the connections will be go through on API server only, and API server need to be active throughout the time. So if the API server become inactive anytime, then your cluster will become dead state. Okay, that we'll talk on later on. Okay, so the next component inside the master node is called etcd, and my friends, note down these technical definition, because you can display your knowledge through practical also, but interviewer expect to have you have that technical knowledge also. Your technical definition should be clear. So instead you mug up all these things, you better note down this and try to implement those practical from this technical definition only. Okay, now what is etcd? etcd is a service whose job is to keep and replicate the current configuration and run state of cluster. So it is implemented as a lightweight distributed key value store and was developed inside the Core OS project. So etcd एक तरीके का डेटाबेस और स्टोरेज बोल सकते हो, ठीक है। अब स्टोरेज है तो क्या स्टोर करेगा? क्या ये जो आपके कंटेनर एप्लीकेशन है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा? तो नहीं, इसका एप्लीकेशन से लेना देना कुछ नहीं होता, इसका लेना देना होता है कॉन्फ़िगरेशन से। तो जितने भी, सपोज कर लो आपने 5 कंटेनर्स रन किए, तो 5 कंटेनर्स की एक आईपी असाइन होगी, ठीक है। तो वो पांचों की आईपी etcd में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और कोई कंपोनेंट ज्वाइन होता है आपके कंट्रोल प्लेन मास्टर नोड से अटैच होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन etcd में स्टोर हो जाएगी। अदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कि etcd किससे कम्युनिकेट करता है? थ्रूआउट दैट क्लस्टर etcd कम्युनिकेट ओनली थ्रू API सर्वर, यानी कि etcd से कोई डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, सिर्फ API सर्वर ही etcd से बात कर सकता है। यानी कि अगर शेड्यूलर को कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो API सर्वर के थ्रू ही भेजेगा, ये नहीं कि शेड्यूलर अपना डायरेक्ट कनेक्शन बना ले etcd से। तो ये एरोज का बहुत ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ओके, now third thing that we are going to discuss is called scheduler and controller manager. So in some of the books you will find that there are 4 components, and in some of the books you will find that there are 3 components. Basically there are 4 components, but considering it as a 3 will be easier and better, give you better understanding. So scheduler is what it is a component that is responsible to assign node for which newly created pod. तो pod के कॉन्सेप्ट में आऊंगा। देखो बेसिक वर्किंग जो होती है शेड्यूलर की, कि अगर कोई कंपोनेंट आता है तो उस कंपोनेंट को या एक कंटेनर को किसी पॉड के अंदर असाइन करना एक वर्कर नोड पर, वो काम होता है शेड्यूलर का। थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन आपको शायद अभी क्लियर ना हो, बट अभी वर्किंग आप देखोगे इसकी पूरी तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है? कंट्रोलर मैनेजर कुछ नहीं होता, कंट्रोलर मैनेजर सिर्फ ऐसा कंपोनेंट होता है मास्टर नोड पर जो बाकी सबको इंस्ट्रक्शन देता है। ओके, सो जो रेस्ट ऑफ कंपोनेंट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन कौन देगा? कंट्रोल मैनेजर। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड वर्कर नोड। तो मैंने कहा कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मास्टर नोड और एक होता है वर्कर नोड या सिंपली नोड। ये क्या होता है? तो वर्कर नोड भी जैसे मैंने मास्टर नोड बताया सेम वैसा ही होता है, बट वर्कर नोड पे एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रन होते हैं जो मास्टर नोड पे रन नहीं होते, और उस पे कंटेनर एप्लीकेशन रन होता है। फिर से सुनो, वर्कर नोड वो होता है जिसपे कंटेनर एप्लीकेशन रन होता है, ओके, एंड मास्टर सर्वर से वो कनेक्टेड होता है। ओके, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्कर नोड पे रन होते हैं? द फर्स्ट एंड द foremost software or a tool that run over the worker node are called kubelet.
ओके, तो क्यूबलेट क्या है? तो क्यूबलेट, द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ द क्यूबलेट इज टू क्रिएट द पॉड्स। अब आप बोलोगे पॉड कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, पॉड को आप एक एक कंटेनर की तरह मान लो, एक कंटेनर की तरह मान लो, और जिसके अंदर सेवरल कंटेनर रन हो रहे हैं, ठीक है? तो पॉड बेसिकली एक लॉजिकल बाउंड्री होती है जिस पे कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 एक साथ रन हो रहे हैं। थर्ड थिंग इज दैट Kubernetes always work on pods, it never works on the container, ठीक है? तो कंटेनर मैनेजमेंट टूल तो है Kubernetes, बट वो वर्किंग कंटेनर्स पे नहीं करता, वो पॉड्स पे वर्क करता है। वो सबसे पहले पॉड क्रिएट करेगा, ठीक है? ये पॉड हो गया आपका, इसको आप लॉजिकल बाउंड्री समझ सकते हो या कलेक्शन ऑफ कंटेनर्स बोल सकते हो, बहुत सी डेफिनेशन है। पॉड एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसकी मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, बट फिलहाल के लिए मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लो कि पॉड एक लॉजिकल बाउंड्री होती है जिसके अंदर सेट ऑफ कंटेनर रन कर रहे होते हैं। तो क्यूबलेट का काम क्या होता है? क्यूबलेट का काम इतना होता है कि एक पॉड बनाओ और उस पॉड के अंदर एक कंटेनर रन कर दो, ठीक है? ठीक है, तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो आता है वो होता है Kubernetes सर्विस प्रॉक्सी, और शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं क्यूब प्रॉक्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वर्कर नोड का। क्यों? क्योंकि इस कंपोनेंट के ही थ्रू आप जो नेटवर्क रूल्स होते हैं किसके? कंटेनर के। एक पॉड है, पॉड के अंदर कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 है, सबके नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इन सब की जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स होंगे वो सब क्यूब प्रॉक्सी देखता है। क्यूब प्रॉक्सी मैनेज करता है जो भी नेटवर्क रूल्स होंगे पॉड के अंदर या फिर पॉड के भी, ठीक है? तो जो पॉड्स के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, पॉड की भी एक आईपी असाइन होती है, और जो पॉड्स के अंदर कंटेनर रन होते हैं उनकी भी एक आईपी असाइन होती है। तो वो सब क्यूब प्रॉक्सी मैनेज करता है, ठीक है? तो दो सॉफ्टवेयर हो गया हमारे, एक क्यूबलेट हो गया और एक क्यूब प्रॉक्सी हो गया। क्यूबलेट पॉड बनाता है, पॉड के अंदर कंटेनर्स रन होते हैं, और क्यूब प्रॉक्सी उनकी नेटवर्क रूल्स देखता है, ठीक है? अब एक और चीज चाहिए हमें, कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम क्या है? कंटेनर रन टाइम, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जो कुबरनेट्स होता है वो कंटेनर को मैनेज करता है, बट कंटेनर को क्रिएट कौन करता है? कंटेनर को क्रिएट करता है कंटेनर रन टाइम। तो आपके वर्कर नोड पे डॉकर सॉफ्टवेयर पड़ा होना चाहिए, या फिर रॉकेट सॉफ्टवेयर पड़ा होना चाहिए, या फिर कंटेनर डी सॉफ्टवेयर पड़ा होना चाहिए, ताकि उस पे कंटेनर क्रिएट्स हो पाए। As simple as it is. So it is a software that is responsible for running the containers, example Docker, Rocket, etc. ओके, तो हमें वर्कर नोड की वर्किंग पता चल गई, मास्टर नोड की वर्किंग पता चल गई, और ये डायग्राम आप देख रहे हो, वर्कर नोड मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे कि ये वर्कर नोड 1 है, ये उसके पीछे है वो वर्कर नोड 2 है, ये वर्कर नोड 3 है, और बट मास्टर नोड केवल आप देख सकते हो एक ही है, ये केवल एक ही मास्टर नोड है, ठीक है? अब दोनों को एक साथ जोड़ के कुबरनेट्स का क्लस्टर फॉर्म होता है, ये मैंने पहले बता दिया था। अब हम देखते हैं क्लस्टर को की वर्किंग कैसी होती है, पूरे क्लस्टर की वर्किंग कैसे होती है, ठीक है? तो मान लो कि आप ये कोर्स पढ़ने के बाद कुबरनेट्स एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, ठीक है? और आपने अपने लैपटॉप से, जिस लैपटॉप से आप पढ़ रहे हो इस समय, या मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, जिससे भी आप पढ़ रहे हो, तो उससे आपने कमांड रन किया kubectl run db server -- image is equals to mysql। अब इस कमांड से होगा क्या? ये कमांड का मतलब क्या है ये आप सोचोगे। देखो, सिंपल सा मीनिंग है, मैं चाह रहा हूं कि kubectl यानी कि एक db सर्वर रन हो जाए, कहां पर? जिसकी इमेज mysql हो, यानी कि एक कंटेनर बने, ठीक है? उसका नाम db सर्वर है, db सर्वर शॉर्ट मतलब उसको फुल फॉर्म में डेटाबेस सर्वर भी बोलते हैं हम लोग, और उस पे mysql इमेज रन हो, ताकि मैं बाद में उस पर काम कर सकूं। अब ये वर्किंग होगी कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? एपीआई सर्वर के पास, ठीक? जैसे आपने भेजा ये कमांड, ये सबसे पहले गई एपीआई सर्वर के पास। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एपीआई सर्वर के थ्रू सब कनेक्टेड होते हैं, तो जितने भी कम्युनिकेशन होगा वो एपीआई सर्वर के थ्रू ही होगा। अब एपीआई सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई कि फलाना लोग ने बोला है कि आप एक
कंटेनर बनाइए जिसपे माई सीक्वल की इमेज डिप्लॉय कीजिए। ठीक है, तो एपीआई सर्वर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी और एपीआई सर्वर ट्रांसफर कर देगा इस रिक्वेस्ट को शेड्यूलर को। ठीक, अब शेड्यूलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैंने बताया था अभी आपको जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मास्टर नोड के बारे में, तो मैं बताया था शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है कि वो नोड फाइंड करता है, वो वर्कर नोड फाइंड करता है, या मैं नोड बोलूं या वर्कर नोड बोलूं मतलब एक ही है। ठीक है, वो नोड फाइंड करता है जहां पर जो यूजर के द्वारा गिवन जो इमेज है उसको डिप्लॉय कर सकूं, एज सिंपल एज इट इज। तो शेड्यूलर का काम क्या है कि अच्छा ये दो वर्कर नोड दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है, इन दोनों में से यार मैं किस में डिप्लॉय करूं माई सीक्वल को, चलो वर्कर नोड 1 में कर देता हूं। ये डिसीजन किसको लेना है? शेड्यूलर को लेना है। ओके, तो शेड्यूलर ने एक नोड फाइंड किया और वहां पे उसने माई सीक्वल नाम का कंटेनर क्रिएट करने का कमांड आगे फॉरवर्ड किया। अब शेड्यूलर के बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी किसके पास? अगेन एपीआई सर्वर को भेजेगा कि ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया है, शेड्यूलर बोलेगा एपीआई सर्वर से कि मैंने डिसाइड किया कि वर्कर नोड 1 जो है वो बनेगी हमारी जहाँ पे कंटेनर रन होगा। ओके, तो एपीआई सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट अब जाएगी क्यूबलेट के पास। किसके पास? क्यूबलेट के पास। तो फ्लो समझ रहे हो? पहले आपने रिक्वेस्ट भेजी, एपीआई सर्वर के पास गई, एपीआई सर्वर ने रिक्वेस्ट ट्रांसफर की शेड्यूलर को, शेड्यूलर ने फाइंड किया वो नोड जहां पर कंटेनर डिप्लॉय हो सकता है, उसने फाइंड करने के बाद पाया कि चलो वर्कर नोड पे डिप्लॉय हो सकता है। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट ट्रांसफर किसको की? क्यूबलेट को। अब क्यूबलेट किसका कंपोनेंट है? वर्कर नोड का। और क्यूबलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्यूबलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक पॉड क्रिएट कर दो, एज सिंपल एज इट इज। ओके, तो क्यूबलेट ने क्या करा? फटाक से एक पॉड क्रिएट कर दिया। ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है ये पॉड है। सो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द पॉड, नाउ क्यूबलेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर. Now he said that okay, I have created that pod. Now I may send this request to the container runtime. कंटेनर रन टाइम कौन क्या होता है? कंटेनर रन टाइम मैंने बताया था कि वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू कंटेनर आप लॉन्च करते हो, जैसे कि डॉकर हो गया, रॉकेट हो गया, कंटेनर डी हो गया। तो इसने कंटेनर रन टाइम को, सपोज कर लो यहाँ पर एग्जांपल डॉकर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके वर्कर नोड पर। तो उसने डॉकर को बोला कि रिक्वेस्ट आई है शेड्यूलर के थ्रू, मैंने उसके लिए पॉड तो बना दिया है लेकिन कंटेनर तुमको बनाना है। तो डॉकर बोलेगा ठीक है मैं बनाता हूँ कंटेनर, लेकिन मुझे कंटेनर पे इमेज कौन सी डालनी है? तो तुम बता, क्यूबलेट बोलेगा कि माई सीक्वल की इमेज बोली गई हमसे, क्या तुम्हारे पास माई सीक्वल की इमेज है? तो डॉकर कहेगा ठीक है अब मेरा काम स्टार्ट होता है, तुम शांत हो जाओ। तो क्यूबलेट वहां शांत हो जाएगा। अब डॉकर का काम स्टार्ट होता है। डॉकर क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल डॉकर विल चेक इन इट्स ओन लोकल रजिस्ट्री whether the image of MySQL is there or not. If there is the image of MySQL, then it will simply deploy the container in that pod. If there is not an image present in its local registry, then it will pull that image from the Docker Hub. अब ये डॉकर की वर्किंग होती है, मैं खाली आपको बता दे रहा हूँ वर्किंग कैसे होती है। आगे डॉकर का देखोगे तो डॉकर में आपको समझ में आ जाएगा, डॉकर का जो डॉक्यूमेंटेशन देखोगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो डॉकर ने देखा ठीक है माई सीक्वल की इमेज है, उसने फटाक से कंटेनर लॉन्च कर दिया पॉड के अंदर, और यहाँ पर माई सीक्वल नाम का, उस पर माई सीक्वल की इमेज डिप्लॉय हो गई। ठीक है, डॉकर का काम खत्म। अब इस कंटेनर और इस पॉड की जो आईपी है वो भी है। तो क्यू प्रॉक्सी ने कहा कि ठीक है मैं एक इन दोनों को एक आईपी असाइन कर देता हूँ, एक पॉड को आईपी असाइन कर देता हूँ, ठीक है, एंड एक कंटेनर को आईपी असाइन कर देता हूँ। तो क्यू प्रॉक्सी ने इन दोनों को एक आईपी असाइन कर दी। अब आईपी असाइन होने के बाद क्यू प्रॉक्सी ने एपीआई सर्वर के थ्रू, अगेन यू कैन सी दैट द कनेक्शन इज मेड थ्रू एपीआई सर्वर, ईटीसीडी को बोला कि अभी एक कंटेनर लॉन्च हुआ है और एक पॉड के अंदर एक कंटेनर लॉन्च डिप्लॉय हुआ है, उसकी XYZ आईपी है, पॉड की भी और कंटेनर की, ये आप अपने अंदर स्टोर करके रख लो। ईटीसीडी ने कहा ठीक है लो मुझे दे दो, और यहाँ पे वर्किंग खत्म हो गई। ओके, तो ये होती है पूरी वर्किंग, कैसे भी कोई क्लस्टर आपस में कम्युनिकेट करता है। अब ये एपीआई सर्वर और कंट्रोलर और शेड्यूलर की आपको वर्किंग पता चली है, अभी हम जब बाद में प्रैक्टिकल देखेंगे तो और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको।
एक बार फिर से देख लेते हैं, जो मैंने बोला है उसी को मैंने लिख दिया यहाँ पे। When user run commands to create cluster, this command goes through API server. From API server, it goes to scheduler, where it finds the perfect node to create that container. Through API server, scheduler find the node and instruct kubelet to create the pod. Kubelet will create the pod and instruct container runtime to create new container with required image. And once the container is created, its info along with pod info is sent to etcd storage through API server. Kubeproxy is there to create network rules for the pods and the container. तो ये इमेज जो आपको शो हो रही है उसमें आपको दिख रहा है कि एक मास्टर नोड है और उसके साथ अलोंग एक वर्कर नोड है। 3 वर्कर नोड है बेसिकली यहाँ पर, जिसके अंदर क्यूबलेट है, क्यूप्रॉक्सी है और पॉड्स हैं। पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर रन कर रहे हैं। ओके, सो that's all for this video, and we will meet in the next video. Till then, goodbye.